Mr. Sachin, can you hear me, sir? Yeah, I'm able to hear you. Yes. Okay, sir. Sir, first of all, sir, thank you very much for giving us a chance to give you a demo. So today, sir, we will look at automation possibilities for accounting by using Microsoft and Google technologies. Right? क्योंकि आजकल जो है क्या-क्या these companies have brought in very good automation tools. And as a first step, sir, हम लोग लुकेंगे at automation of spreadsheets. क्योंकि सर हमारे जो accountants होते हैं, they take a lot of time in actually making these custom spreadsheets on a month by month or on a year by year basis. And my dependent as an owner is on the accountant for giving me that customized spreadsheet on a regular basis. Right. So we would be first looking at how do we get all these spreadsheets, with a higher frequency and with extreme regularity. इसके लिए सर हम सबसे पहले सर Microsoft का टूल का देखेंगे. Right. And सर हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने एक्चुअली वी हैव वर्कड विद यम फूड्स जो पिज्जा हट वगैरह वाला है, तो उसकी हम लोग जो है not the exact sample report but the key KPI, one of the key KPIs we have also sought to put it in the time frame we had for this demo. So sir, shall I start, sir? Yes, please. ठीक है सर. सर एक one of the key problems इससे हम लोगों ने जैसे कहा कि automation of the sales order report. तो हमारा जो client है, he needs a consolidated sales order report by billing report by go down. So the current status is that that report is probably generated manually, and the report generation requires at least one man day. Now the tally report for which he has made a custom TDL, this takes more than 20 minutes to refresh on a single day. Now, sir, can I know which ERP do you currently have across all your locations? I've seen that you've got 3 stores, right? 3 cities and 15 stores. Correct. So currently we are using Paid Puja as our POS. Okay, fine. आपका एक different ERP है, right? ERP we are using Tally Prime, but Paid Puja as a POS what we are using. So ठीक है सर, तो हमें दोनों को कंसोलिडेट करना पड़ेगा, राइट? अगर आप इसे कर सकते हैं तो आपको दोनों को कंसोलिडेशन भी जो है वो इसमें हो जाता है, राइट? तो आपका इमीडिएटली जो है आज की तारीख में विद इन टुडे यू कैन एक्चुअली गेट द कंप्लीट टैली प्राइम के साथ इंटीग्रेशन. नाउ द क्लाइंट सिनेरियो इज दैट द क्लाइंट वांट्स द सॉल्यूशन टू बी प्लग एंड प्ले. उसका जो भी सॉल्यूशन आ चाहिए क्लब एंड प्ले. जो डेटा एक्सट्रैक्शन होना चाहिए वो ऑफ पीक आवर्स में होना चाहिए. There should be no load on tally when the data is being refreshed. क्योंकि कई बार क्या होता है बहुत heavy reports होती है. अगर आपके if you have got stores across 3 cities and there are more than 15 such locations, अगर आप उसका consolidated financial statement दिखाएंगे तो tally पे बहुत load होगा. That is the time which it takes. The system is not there, right? So he does not want that problem. The client wants the graphical representation of the reports and addition of more reports. The client does not want any database because this database would actually entail more, more resources on his end. The client desires to keep the solution either on the premises or on secure Google and Azure cloud. So many of the clients, many of the customers who are coming to us, they're not very comfortable in putting their entire data onto third-party, applications. So they are saying, no, I want either the data to be on my machine or the data has to be on Google or Microsoft, because these are standard companies where my data would be 100% secure. The client has a very low budget. It wants a quick turnaround time for the implementation of the solution. So sir, आपने ये देखी होगी sales order due reports as well as the bill receivable report, and they are linked by the party ledger name. It wants to merge these 2 reports. So the sales order report it can be done by item wise as well as go down wise and batch wise. The sales order and the sales invoice are linked by the reference number. The delivery note is linked with the sales invoice by the tracking number, and sales invoice is linked by the receipt details by the bill ID. ये इस तरीके का tally का complication है. Now where the complication comes is if I have got a voucher, I've got a general view as well as a ledger view. The ledger view is with taxes, general view is without taxes. Both are interlinked by custom functions in Tally. So that is where the complexity comes in. और ये जो custom functions हैं सर, ये हम लोगों ने built in कर दिया into the Microsoft tool. This is in brief the structure of the solution. ठीक है ना? And the solution has been deployed in many places. So what are you looking to eliminate? You're looking to eliminate custom functions within Tally. The complexity of Tally in terms of the reporting purposes, any Excel spreadsheets for consolidating the Excel and the Tally ERP data, any separate database install,
no connector and API, and no custom and custom procedures and functions in SQL. अब सर आपके केस में सर जो POS वाला है वो शायद मैं डेटाबेस में लेके आऊंगा, ठीक है ना, एपीआई को लेकर के डेटाबेस में ला करके फिर कंसोलिडेट करूं। हम क्या करेंगे सर, रिड्यूस करेंगे डेटा एक्सट्रैक्शन टाइम्स, एग्रीगेट्स एंड टीडीएल इक्वल कोड, पर सबसे बड़ी बात है हम डेटा साइज को जो है छोटा कर देंगे ताकि मेरी रिपोर्ट जो है बहुत फास्ट हो। एंड यू शुड बी एबल टू डेवलप हाईली कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट्स वेरी वेरी क्विकली एट द डेटाबेस लेवल। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि एकदम प्लग एंड प्ले सोल्यूशन है। एंड डेटाबेस रिफ्रेश टाइम फॉर द रिपोर्ट शुड बी द मिनिमम। आपकी रेस करेंगे ईज ऑफ रिपोर्टिंग। तो सर हम लोग क्या कर रहे हैं सर, इस सोल्यूशन को बहुत इजी बना रहे हैं। मिनिमल नंबर ऑफ टेबल से आप सारा का सारा चीजें निकाल सकते हो। कन्वीनियंस वर्किंग विद बीआई स्टैक ऑफ टू, अगर पावर बीआई चाहिए। ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट आपका पॉइंट एंड क्लिक डिप्लॉयमेंट होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपोर्टर कॉन्करेंट यूजर्स फॉर द रिपोर्ट्स, और इस तरीके से। So what am I offering? I'm offering lower coding time, faster data access, easy to use desktop server, and lower number of spreadsheets. And buyer value at Tally MIS, graphs, dashboards, and time series analysis. Sir, any questions up till now? No, nothing. अगर सर आप एक्सेल यूज करते हैं सर, तो एच लुकअप और वी लुकअप की जगह आपका जॉइंट्स एंड फिल्टर आ गया है। आपकी बहुत सारी एक्सेल स्प्रेडशीट्स बनी होंगी। अगर आपका अकाउंटेंट बना रहा है वो सीधा का सीधा वेरिएबल्स, ईज ऑफ यूज आता है। एंड सर आप अगर एग्रीगेशन कर रहे हैं एक्सेल में तो आप सम इफ बहुत यूज कर रहे होंगे, उसकी जगह समराइज और फिल्टर आता है। What is the difference between this and Excel and DAX? सर एक्सेल में आपका सब कुछ सेल बेस्ड है तो आपको मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी है। डैक्स में क्या है, आपका कॉलम बेस्ड है। आपका क्या आ गया, ऑटोमेशन आ गया। दैट इज द होल थिंग। एंड आई वांट क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट इतनी प्यारी चीज दे रहे कि आप ऑटोमेशन करो, आप डेटा कंप्रेशन यूजिंग पावर बीआई, रो लेवल सिक्योरिटी होता है। अब किस तरीके की रिपोर्ट्स जो है वो ऑटोमेट की जाती हैं, जिनका कि बहुत बड़ा टैली डेटा है। सपोज आपके सर 15 स्टोर है, उनका कंसोलिडेट करके रिपोर्ट बनानी है। मैट्रिक्स और क्रॉस टैब रिपोर्ट्स, मैट्रिक्स और क्रॉस टैब रिपोर्ट सर ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है सर, स्पेसिफिकली अगर आप मल्टीपल लोकेशन या टाइम के वाइज देख रहे हैं। फिर सर कई कंपनीज आर नॉट वेरी हैप्पी विद द इन्वेंट्री कैलकुलेशन इन टैली, वेटेड एवरेज स्पेसिफिकली इन फीफो। आप फीफो यूज करते हैं कि वेटेड एवरेज यूज करते हैं? फीफो। अच्छा, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा ट्रिकी है। स्पेसिफिकली अगर मल्टीपल लोकेशन मल्टीपल ब्रांचेस होती है तो मेरे पास कितनी इन्वेंट्री है, उसकी वैल्यूएशन क्या है, वो है। देन आई वांट टू अंडरस्टैंड टाइम सीरीज एनालिसिस, मंथ बाय मंथ एंड क्वार्टर बाय क्वार्टर। फिर बहुत सारे लोगों की सर कस्टम रिपोर्ट्स हैं इन्वॉल्विंग सेल्स ऑर्डर एंड अकाउंट रिसीवेबल। दे वांट ग्राफिकल रिपोर्ट्स, एंड कई जगह उनको ऑडिट रिपोर्ट्स चाहिए बाय जीएसटी एंड टीडीएस। सर मैं आपको बस एक केस सिंपल दिखा सकता हूं। द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज दीस आर माय कस्टमर्स इन द लास्ट 3 months, and on total they have actually saved close to more than 93 man hours per man month. So sir क्या होता है कि ये लोग, so this is all auditable, मतलब किसी ने एक शीट कराई, किसी ने एक शीट कराई, किसी ने 5 शीट्स कराई and so forth. Now they would have developed their own reports over the module, तो वो हमें पता नहीं लगेगा, because once they have purchased the tool, the basic tool with the 3K rupees, तो उसके बाद हमें पता नहीं लगेगा कि उन्होंने और क्या क्या बनाई। पर ये जो रिपोर्ट्स हमारी बनी थी उसके बेसिस पे उन्होंने मोर देन 93 man hours per month। दिस इज द लीस्ट वी आर कमिटिंग। सो दिस इज द टाइम सेविंग फॉर द कंपनी। मतलब अगर आपने सपोज सर जैसे कि पैसा बाजार की ये एक रिपोर्ट थी सर, इट यूज्ड टू टेक अबाउट 20 man hours, उनकी जर्नल ऑडिट की एंट्री थी। ये पूरा का पूरा टाइम उनका सेव हो गया और हो गया। सर आई जस्ट वांट टू आल्सो टेल यू, आपके बिजनेस से हम थोड़ा सा एसोसिएटेड हैं। वी हैव वर्कड विद यम फूड्स and we did SSTG, SSSG, same store transaction growth and same store sales growth by year and the month and the day, by item and the store name। तो पूरी की पूरी item की hierarchy and store name की hierarchy। I don't know आप ये analytic use करते हैं कि हर store पे कितनी कितनी growth हुई, right? तो सर ये हम लोगों ने एक्चुअली एनालिसिस की हुई है। इसकी रफ रिपोर्ट हम लोग जो थे, हमारे पास अभी 2-3 घंटे ही थे, तो हम लोगों ने थोड़ी सी रफ रिपोर्ट से एक बना ली है। और एक हम लोग बात कर रहे हैं मार्केट बास्केट एंड एफिनिटी एनालिसिस से। मार्केट बास्केट एंड एफिनिटी एनालिसिस ये होती है कि कौन सा आइटम मेरा किसके साथ कैसे कैसे चल रहा है। सर एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ सर? ठीक है ना, तो ये मैं आपको एक दिखा दूंगा। आपको सर मिनिमल रिक्वायरमेंट 8 GB की रैम होगी और विंडोज 7 एंड अबव होगा। और सर ये ग्राफ आपको दिखाता है कि आपकी सेविंग क्या। हम टैली के 100 पेज के डेटा को 1 पेज का करते ताकि आपकी रिपोर्टिंग जो है एकदम फास्ट हो जाए। ठीक है ना। अब सर ये टूल कैसे डिप्लॉय होगा, तो आपने मान लो अपना टैली यूज किया और आप उसका डेट रेंज सेट करेंगे। अब आपका टैली प्राइम है तो उसमें टीडीएल हम लोग लोड कर देंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आकर के मैंने टीसीपी लोड कर दी, ठीक है ना।
और उस टीसीपी लोड करने के बाद सर, ये आपको पता है ना टीसीपी कैसे लोड करते हैं, यहाँ पे आपको एक एक्सट्रैक्ट कंपनीज मिलेगा, आप इस एक्सट्रैक्ट कंपनी से एक कंपनी, दो कंपनी, मल्टीपल कंपनीज ओवर एनी टाइम पीरियड आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये आपका अधिकता जो है टैली का पूरा डेटा जो है आपका आ जाएगा। एनीथिंग क्लियर? दिस इज जस्ट द इंस्टॉलेशन जो कि हमें आपकी तरफ से करना है, करेक्ट। और फिर आपको यहाँ पे रिफ्रेश का बटन दबाना है, और रिफ्रेश का बटन दबाने से आपकी पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है रिफ्रेश हो जाएगी। Shall I do it here? ये मेरा, this is the entire installation process for this entire product. It is as simple as this. मतलब मैं आपको पावर बीआई की फाइल दूंगा, आप पावर बीआई डाउनलोड करेंगे। वो पावर बीआई आप डाउनलोड कहां से करेंगे सर? आप पावर बीआई डाउनलोड जो है वो आप इधर से करेंगे, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की स्टैंडर्ड साइट है, ठीक है ना। ये वहां से आप माइक्रोसॉफ्ट की पावर बीआई की स्टैंडर्ड, आप ये सिंपल की सिंपल फाइल जैसे आप एक्सेल की फाइल खोलते हैं वैसा करेंगे, टीसीपी लोड करेंगे, अपने टैली प्राइम एक्सट्रैक्ट कंपनी करेंगे, एक्सट्रैक्ट कंपनी के बाद ये पावर बीआई की फाइल जो है इसको खोलेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, और आपकी कंपनी का अक्रॉस ऑल द कंपनीज आपका सारा का सारा डेटा आ जाएगा। सर एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? मैं, दिस इज वेरी वेरी इजी टू यूज एंड वेरी वेरी इजी टू डिप्लॉय। अब बताइए सर, एनी क्वेश्चंस? अब सर मैं आपको, हाँ जी बोलिए। नहीं, मैं आई वाज जस्ट थिंकिंग कि हमारा भी कैसा डेटा इज फर्स्ट इज ऑन पेट पूजा, वहां से हम लोग फिर वो रिपोर्ट्स डाउनलोड करते हैं मैन्युअली एक्सेल में, देन वी वर्क ऑन दोस पर्टिकुलर रिपोर्ट्स एंड देन वी अपलोड दैट इन टैली। हाँ, तो आप अभी तो हम लोग क्या करेंगे, टैली में से जो है डेटा एक्सट्रैक्ट करके पहले तो रिपोर्ट्स निकालेंगे, ताकि टैली वाला जो आपका पूरा का पूरा ऑटोमेशन हो जाए। ओके। अब जो पेट पूजा वाली जो आपकी साइट है, राइट, उससे फिर मेरे को थोड़ा ओडीबीसी कनेक्शन करना पड़ेगा, और मैं फिर आपको बताऊंगा कि वो कैसे उसका वहां से ऑटोमेट होगा, क्योंकि इसमें कहीं से भी आप डेटा जो है एक्सट्रैक्ट कर। सर ये स्टैंडर्ड माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, ठीक है ना। तो आप एक बार डिप्लॉय कर लीजिए, मेरा डिप्लॉयमेंट पैकेज जस्ट 3K रुपीज प्लस जीएसटी का है, तो आप पहले अपना डेटा देख लें। अब मैं एक एक करके आपको जो है ग्राफ्स भी दिखा देता हूं, और इसमें से कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं वो भी मैं दिखा देता हूं, ठीक है सर। तो सबसे पहले सर मैं आपको हीट मैप दिखाता हूं। ये मैट्रिक्स रिपोर्ट होती है, कलर रेंडेशन से पता लगता है मेरा कौन सा मेजर कितना कितना इंपॉर्टेंट है। मेरा लाइन चार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आपका एक्सेल में होता है वैसे के वैसा लाइन चार्ट होता है, और इसमें आप ड्रिल डाउन भी और ड्रिल अप भी कर सकते हो। इज इट करेक्ट? फिर फनल चार्ट जो है सर, ये बेसिकली प्रोसेसेस के लिए होता है, सेल्स ऑर्डर टू डिलीवरी नोट टू रिसीट नोट, पर हम लोगों ने इसमें जो है लेजर वाइज जो है वो पूरा का पूरा किया। फिर तीसरा जो है सर रिबन चार्ट। सर ये रिबन चार्ट मुझे तो बहुत यूजफुल लगता है सर। मेरे पास एक्चुअली क्या है कि मेरा एक आइटम एक महीने में पहले नंबर पे था, दूसरे महीने में कौन से नंबर पे था, आई वॉन्ट टू सी इट एज अ रिबन। सर ये बहुत यूजफुल आता है, आप जब अपना डेटा इसके साथ देखोगे ना, तो आपको जो है इसमें बहुत यूजफुल है, और इसमें जो है पूरा का पूरा हायरार्किकल डेटा आ जाता है। तीसरा जो है सर स्कैटर प्लॉट, ओवरस्टॉक अंडरस्टॉक एनालिसिस के लिए बेस्ट है। देखिए सर इसमें जो है क्या आ रहा है, आपके 3 मेजर्स हैं सर, सेल्स वैल्यू एंड द एक्स एक्सिस, वाई वैल्यू पे परचेज वैल्यू, और जो साइज ऑफ द बाबल है वो क्लोजिंग बैलेंस है। तो सर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं सर, ये पर्टिकुलर आइटम जो है इसकी सेल्स वैल्यू बहुत बहुत कम है, पर परचेज वैल्यू बहुत ज्यादा है, ये ओवरस्टॉक है क्या अंडरस्टॉक है? ये ओवरस्टॉक हो गया, पर ये एकदम राइट स्टॉक हो गया। तो ये आपको इमीडिएटली जो है ये दिखाएगा कि आपका कौन सा आइटम जो है, अगर आप रिटेल सेल्स में आप खरीदते हैं फिर बेचते हैं, खरीदते हैं फिर बेचते हैं, तो कौन सा आइटम जो है कितना कितना क्रिटिकल और कितना कितना इंपॉर्टेंट है। फिर मैं तीसरा आपको दिखाता हूं सर ट्री मैप। ट्री मैप क्या करता है, अक्रॉस द वेरियस हायरार्कीज बटा सेल्स अकाउंट एंड लेजर, आपको एक ही व्यू में सारे के सारे वो दिखाता है। सर ये कंसोलिडेटेड व्यू के लिए बहुत अच्छा होता है। सर वाटरफॉल चार्ट जो होता है ये दिखाता है मेरा कितना परसेंटेज चेंज है ओवर प्रायर फिजिकल पीरियड। इज दिस क्लियर सर? ठीक है ना। लाइन एंड स्टार्ट कॉलम चार्ट सर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, दिस इज एक्चुअली कन्वीनियंस के लिए है। ये स्टार्ट कॉलम है, ये लाइन चार्ट्स आ रहे हैं आपके। लाइन एंड क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट जो है ये अगेन आपका ये आ रहा है, ठीक है ना। और स्टार्ट बार चार्ट जो है ये आपका जो है अलग अलग तरीके के रेफरेंसेस है।
ठीक है ना। तो ये पूरे के पूरे चार्ट जो है मैं आपको इमीडिएटली दे सकता हूं। आप पावर बीआई फाइल लोड करिए, मैं आपको इमीडिएटली टीसीपी देता हूं, टीसीपी से डेटा एक्सट्रैक्ट करिए, हमारा बंदा एक्सट्रैक्ट करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना पूरा का पूरा डेटा देखिए, आपका डेटा दिखता कैसा है क्रॉस वेरियस कंपनीज। इज दिस क्लियर सर? अच्छा सर, अब मैं आपको बताता हूं आपको कौन कौन सी एंटिटीज से काम करना है इसमें। ये डेट डायमेंशन है सर, आपका टाइम वाइज बहुत एनालिसिस होगा। इस मंथ, प्रायर क्वार्टर, प्रायर दिस थिंग, वो काफी एनालिसिस होगा। तो ये उसके लिए हम लोगों ने डेट डायमेंशन बना रखी है, ठीक है ना। अगर आपने मल्टीपल कंपनीज लगा रखी हैं सर, तो इस कंपनीज के लिए, अक्रॉस वेरियस कंपनीज के लिए हम लोगों ने ये वाला बना रखा है, ये कंपनी वाला। मैं आपको सिखा दूंगा, ये बेसिकली 4-5 ही होंगे। इज दिस क्लियर? फिर तीसरा सर, इधर आ जाइए और इधर आकर के देखिए सर, आप इसमें सीधा का सीधा देखिए स्टॉक आइटम व्यू। आप इसी पे ही काम करिएगा, आपको स्टॉक आइटम व्यू और लेजर व्यू पे काम करना है। इस पे बटा टाइम ग्रैन्युलैरिटी आपकी सारे के सारे केपीआईज और मेजर्स मिलेंगे। अगर आपको कोई भी ऐसा केपीआई जो मेजर है वो हम बना के देंगे, जो कि आपको कस्टम बना के देना, राइट। इसी लेवल ऑफ हायरार्की पे है। तो ये जैसा आपका वाउचर एक्सट्रैक्ट है वैसे उस पे आ गया। इसमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी आ रही है। इज इट क्लियर सर? है ना सर? और तीसरा जो है और चौथा जो है, जो हम आपको कह रहे हैं, वो आ जाता है लेजर व्यू। देखिए मैंने आपको 2 व्यूज बताए थे, एक इन्वेंट्री व्यू होता है और एक लेजर व्यू। दोनों का इधर आ गया। ये पूरी की पूरी P&L वाली हो गई और ये आपकी जो है प्रॉफिट एंड लॉस वाली एंट्रीज हो गई। क्लियर है सर? इससे आप सारी की सारी स्प्रेडशीट जो है अपनी ऑटोमेट कर सकते हैं। सो आवर एंडेवर इज दैट इट शुड बिकम सेल्फ सर्विंग। इज इट क्लियर? अब सर मैंने एक्चुअली इसमें से एक्चुअली क्या था, मैंने एक SSTG और SSSG की, ये हम लोग आप लोग काफी यूज करते हो कि मेरा इस पर्टिकुलर स्टोर में इस आइटम की कितनी परसेंटेज ग्रोथ हुई ओवर प्रीवियस ईयर, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस क्वार्टर, प्रीवियस मंथ। ये रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बटा ट्रांजैक्शन और बटा दिस थिंग, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट है। एम आई क्लियर? है ना। तो मैंने सर एक सैंपल सी बना लिया कि मैंने स्लाइसर लिया बटा फिस्कल ईयर का, और मैंने यहां पे लिया कि मेरी सेल्स इन्वेंट्री जो थी, तो ये देखिए, ये अगर मैं स्टॉक आइटम व्यू से लेता हूं तो मेरी सेल्स इन्वेंट्री वाली जो है वो इधर से लिया मैंने बटा आइटम। मैंने एक लिस्ट रिपोर्ट बनाई और मैंने ये कहा कि बॉस इस पूरे फिस्कल ईयर में मेरी टोटल सेल्स इन्वेंट्री की कितनी सेल है। ये पूरे पूरे रेडीमेड केपीआईज आएंगे आपके पास। और इसके पिछले साल वाले में क्या क्या हुआ भाई, इस साल और उसके पिछले साल वाला क्या हुआ, उसके बेसिस पे मैं ये की रिपोर्ट बना सकता हूं। क्लियर है? अब सर अगर आपका कलेक्शंस का बहुत ज्यादा इशू है तो सर मैं आपको एक और व्यू जो है वो बहुत ज्यादा बता देता हूं, वो है पेएबल एंड रिसीवेबल स्नैपशॉट, ये वाला। ठीक है ना। इस पेएबल एंड रिसीवेबल स्नैपशॉट, क्योंकि हमारे कई सारे ऐसे कस्टमर होते हैं सर जो कि कस्टम व्यू में अपना रिसीवेबल और पेएबल का डेटा देखना चाहते हैं, एंड दे वांट टू लिंक इट विद देयर सेल्स ऑर्डर। एक पेमेंट फॉलोअप से सब कुछ नहीं होता। I have to block this person's sales order at some point in time. So I can put it up age bill, age category, bill credit period, bill date, bill ID, bill name, closing balance, company name, ये आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। Is it clear? क्योंकि you can actually, अब इसमें सर हमने बहुत सारे कस्टम व्यूज भी बना रखे हैं। अगर आप स्टॉक आइटम बैच डिटेल में जाएंगे तो सेल्स ऑर्डर के भी डिटेल्स हैं कि हमने सेल्स ऑर्डर पेंडिंग कितना है वो भी आ रहा है। ठीक है ना। तो ये मैंने सर आपको नेट व्यू बता दिया फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट की, किस तरीके से आप अलग अलग स्प्रेडशीट्स ऑटोमेट कर रहे हैं, और लोग ऑटोमेट अब कर रहे हैं। इट्स बिकमिंग अ मूवमेंट बिकॉज़ पीपल आर लुकिंग एट ऑटोमेशन एंड सेविंग टाइम, एंड वी हैव हैड सक्सेस ऑन इट। सर एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? नहीं, नथिंग। ठीक है सर। सर एक और चीज और आती है कि सर कई लोगों को अपना कस्टम मोबाइल ऐप चाहिए होता है, तो उसके लिए गूगल ने एक बहुत अच्छी फैसिलिटी दी है कि अगर मैं एक्सेल में एक्सपोर्ट करूं तो मैं उसको गूगल ड्राइव से सिंक कर सकता हूं, और उस पे ऐप शीट पे आप अपना कस्टम मोबाइल ऐप बना सकते हो। तो सर वी हैव एक्चुअली गॉन फार अहेड, वी आर एक्चुअली यूजिंग गूगल बॉट्स फॉर ऑटोमेशन ऑफ ऑल आवर सेल्स एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज। तो आपको जो मैसेज भी गया था वो एक्चुअली बॉट का है। So we contacted you through a bot. हमारा मैन पावर जो है वो एकदम कम हो गया।
तो ये इस तरीके से रिसीवेबल है, ये वाउचर लेजर है, ये पेएबल का है, ये सेल्स एंड जीएसटी व्यू है, मेरा कस्टमर सेल्स, सेल्स लाइस, वाउचर इन्वेंट्री रिपोर्ट, ये मेरा स्टॉक आइटम और स्टॉक ग्रुप का व्यू है, ये मेरा लेजर का व्यू है। और आप इसको एडिट भी कर सकते हैं और आप यहां से ऑटोमेटेड ईमेलिंग भी चली जाती है। ठीक है ना। तो सर मैंने आपसे सर केवल 15 मिनट मांगे थे और जो है ये मेरा जो है अभी टाइम खत्म हुआ, मैं 15 मिनट में आपको दिया। अब आप बताइए सर, एनी क्वेश्चंस? द फर्स्ट स्टेप सर है इसके, आप जो है ये इनिशियल मॉड्यूल जो है ट्रायल मॉड्यूल अपनी मशीन पे डिप्लॉय करके इमीडिएटली देख लें कि कैसा आ रहा है, क्योंकि इसमें अधिकतर टैली का डेटा हमने ले आया और बहुत सारी रिपोर्ट्स हो सकता है जो रिपोर्ट मैंने प्रेजेंटेशन में कवर नहीं की हो वो आपके लिए रेलेवेंट हो। जैसे कई लोगों के लिए परचेज सेल्स ऑर्डर पेंडिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हो जाती है, कई लोग रिसीवेबल टर्नओवर का देख रहे हैं। इसमें कंजम्पशन रिपोर्ट वगैरह भी आ कंजम्पशन रिपोर्ट मतलब प्रोडक्शन कौन सी? रॉ मटेरियल कंजम्पशन रिपोर्ट। हाँ, रॉ मटेरियल कंजम्पशन रिपोर्ट जो है सर ये आपकी वाउचर इन्वेंट्री से आ रही है ना? हाँ, प्रोडक्शन रिपोर्ट से। प्रोडक्शन से आ रही है। अच्छा सर, अगर प्रोडक्शन से आ रही है सर और आपका प्रोडक्शन टैली में है तो सर मैं आपको सबसे पहले स्टॉक आइटम व्यू को रिकमेंड करूंगा कि आप स्टॉक आइटम व्यू में देखिए कि आपका कौन सा कंपनी नेम है, कौन सी कॉस्ट कैटेगरी है, कॉस्ट सेंटर नेम है, कितना डेबिट कितना क्रेडिट, और जो कंजम्पशन होगा सर वो आपको जो है वाउचर टाइप नेम से पड़ेगा। मुझे एग्जैक्टली आपकी रिपोर्ट का फॉर्मेट नहीं पता है, तो आप मेरे को वो रिपोर्ट का फॉर्मेट भी एक्सेल वाला दे सकते हैं। ठीक है ना। तो इस वाउचर टाइप पेरेंट वगैरह से आपको डेबिट क्वांटिटी, क्रेडिट क्वांटिटी और उसका टोटल अमाउंट वगैरह जो है वो पता लग जाएगा। आई थिंक आपका इन्वेंट्री व्यू से ज्यादा आ रहा है। बिकॉज हम लोग क्या करते हैं कि जो भी सेल होता है उसका एक प्रोडक्शन पहले करते हैं टैली में और फिर उसका सेल होता है, बिकॉज बीइंग इन द होटल इंडस्ट्री वी डू नॉट हैव एनी फिनिश्ड प्रोडक्ट इन स्टॉक। अच्छा, तो रेस्टोरेंट में इट्स ऑल मेड टू ऑर्डर, राइट? तो राइट, there's nothing which is there in stock, so as soon as we get an order it hits the production, मतलब हर एक का प्रोडक्शन होता है फिर सेल होता है। तो जैसे ही प्रोडक्शन होता है तो वो उसका जो रॉ मटेरियल बॉम्ब बिल ऑफ मटेरियल हम लोग ने असाइन करके रखा है वो अपने आप उसमें से माइनस हो जाता है टैली में से। हाँ मैं आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन इससे शायद पावर बीआई से हो सकता है, बट वील हैव टू जस्ट लुक इनटू इट। दूसरा इसमें अभी ये तो हम लोग ने टैली से कनेक्ट की बात कर ली, अभी हमारा जो एचआरएमएस है, राइट, और कुछ पेट पूजा की भी रिपोर्ट्स हैं, वो भी सर आप इससे सीक्वल सर्वर से कनेक्ट कर लो। अच्छा, हाँ आराम से हो जाएगा। जैसा कि अभी मतलब कितने बजे ऑर्डर सिस्टम में हिट हुआ, उसको प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम लगा, कितने बजे वो डिलीवर हुआ, all that can be done. We are very confident we can do it. It will be easier also actually. सर मुझे एक सेकंड देंगे, मैं एक्चुअली दूसरी मीटिंग। जो हमारा एक्सटर्नल एचआरएमएस है और जो बाकी का जो सॉफ्टवेयर है तो वो भी आप एसक्यूएल की, हाँ हम लोग इसको यहाँ पे integrate हो लिंक ही कर जाएगा। देंगे और पूरा टैली और उसका एचआरएमएस का पूरा लिंक कर देंगे। अभी ये जो माइक्रोसॉफ्ट आपने दिखाया था वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट यूज वाला माइक्रोसॉफ्ट है ना? हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, करेक्ट। तो मेरा जो कॉस्टिंग है वो ब्रिज का है सर, टीसीपी और इसका ये जो कोड है। हाँ जी। और इसका जो आपका मोबाइल ऐप भी मैंने सुना था आया है करके माइक्रोसॉफ्ट का, लेकिन वो कुछ पेड वर्जन है, राइट? हाँ सर, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हम पब्लिश कर देंगे और पब्लिश करने के बाद आप अपना कस्टम मोबाइल ऐप भी करते हैं। अच्छा आपको काफी पता, हाँ पब्लिश करके मोबाइल ऐप भी आ जाता है। राइट राइट, ओके। तो आप ये हमको जो गूगल का भी आपने दिखाया था वो करने के लिए भी हेल्प करती है कि वो उसका मतलब उसका कैसा होता है? हाँ सर, तो उसमें मैं क्या करूंगा सर, मैं आपको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर दूंगा, क्योंकि हमारा अभी हम लोग ने गूगल का पेड सर्विसेज ऑलरेडी ले रखा है। ठीक है। तो सर उसके लिए मुझे आप क्या पहले इसको डिप्लॉय करेंगे? एक मिनट जरा, क्योंकि ये आपका कंसोलिडेशन वाला हो जाएगा। गूगल वाले का सर मुझे थोड़ा सा अलग सा डेमो देना पड़ेगा अभी। अच्छा,
वो मैं आपको टीसीपी देता हूँ, आपका एक्सेल में करके जो है फिर आपका इमीडिएटली जो है आपका मोबाइल ऐप बन जाएगा यूजिंग ऐप शीट्स। हेलो सर। यस यस यस, नहीं आई एम जस्ट वंडरिंग, अभी हम लोग जब भी टैली में कुछ नया ऐड करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सिंक होते रहेगा टैली के साथ। करेक्ट करेक्ट। वो एक आध लेक्चर अगर ऐड भी किया तो वो अपने आप वो एक सर्टेन टाइम अपने आप इंटरवल शेड्यूल कर देंगे उसको एक्सट्रैक्शन में। सर मुझे सर एक्चुअली दूसरी कंपनी है सर, उन्होंने एक्चुअली मैं आपको बताया था 5:30 पे था, तो कैन आई जस्ट अटेंड देम? आई अगर विल आपको कम बैक कॉल टू कर यू रहा हूँ 40। तो सवेरे बात कर लेंगे, जो भी मेरा डाउट्स रहेगा नोट इट डाउन एंड कनेक्ट विद यू टुमारो। हाँ, नहीं तो आप सर इमीडिएटली पैकेज को ले सकते हैं, मैं आपको रिकॉर्डेड सेशन आप डिप्लॉय करके एक बार देख लें क्या आ रहा है। ठीक है ठीक है, मैं आपको पैकेज देता हूँ, कल मैं आपका डिप्लॉय करा दूंगा और आपको रिकॉर्डेड सेशन दिया। आज आप चाहें तो मैं आज डिप्लॉय करा सकता हूँ। जस्ट गिव मी 15 मिनट्स, क्योंकि सर वो उनके सीईओ हैं एक्चुअली, तो वो वेट कर रही हैं। नहीं 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 ये वीकेंड होते हैं तो हम लोग बात करते हैं। ठीक है आपका सर। जैसे हो जाएगा जस्ट गिव मी अ मैसेज, अपन या कल सवेरे दोपहर को 2 बजे बात कर सकते हो के बाद। ठीक है सर, मेरे को सर अपना फोन नंबर दे दीजिएगा सो दैट यू नो आई लिंक इट। आपको सर डिप्लॉय करके एक मिनट जरा देख लीजिए। और ठीक है, आप मेरा नंबर नोट कर लो, 98 हाँ 98 23 23 93 93 9466। 9466, यही है ना? 9823939466 करेक्ट। इसके ऊपर आप मुझे एक हाई डाल दो क्योंकि मेरा फोन व्हाइट लिस्ट पे डायरेक्ट नंबर मुझे आएगा नहीं। ठीक है सर, मैं आपको कर दूंगा। ओके, थैंक यू। एक सेकेंड। ओके सर, थैंक्स। मीटिंग ओके।